रामेश्वरम जाना चाहते हैं, देश के किसी भी कोने से हैं, तो अब रामेश्वरम आना और ज्यादा आसान हो जाएगा। केवल कुछ महीनों का इंतजार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंबन ब्रिज पर है और नया ब्रिज जो है वो बनकर तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। अब केवल कुछ ही महीनों का वक्त है। आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अगर आप रामेश्वरम आए होंगे, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है, और जो नहीं आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2022 दिसंबर में जो पुराना ब्रिज है, जो 107 साल पुराना था, उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वो अब सुरक्षित नहीं था। आपको दिखाते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नया जो ब्रिज है वो बनकर तैयार हो रहा है और कुछ ही महीनों का इंतजार है। जो डेडलाइन है वो जून 2024 की है। आपको बता दें कि मैक्सिमम जो काम है वो पूरा हो चुका है। करीब ये अगर बात करें तो 2.08 किलोमीटर्स का ये पूरा है, जो मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ता है। अब आपको हम बताते हैं कि केवल 400 मीटर तक का काम जो है वो बचा हुआ है। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर डीआरएम मौजूद है, सीनियर डीजीएम मौजूद है, आर श्रीनिवास जी। आप अगर थोड़ा सा आगे आए और हमें बताएं। देखिए, हम समुद्र के बीच में इस वक्त हैं और आप किस तरह से इसको बताएंगे कि कितना वक्त और लग जाएगा, कितने वक्त का इंतजार है। जो लोग रामेश्वरम आना चाहते हैं लेकिन उनको पहले मंडपम में उतरना पड़ता था, तो अब कितना आसान हो जाएगा ये ब्रिज? How it will be more benefit to people who are coming to Rameshwaram? No. Once this bridge is commissioned, and more number of trains will run at higher speed, so that more trains can be run on it in short time, so that more pilgrims can reach Rameshwaram to visit temples and all. What was the difficulty coming in the old bridge, if we talk, because it was too old, 107 years old bridge, and how much time it will take to complete the new bridge? So now from the new bridge of 2.08, 1.5 kilometers are fully completed. From A1 to P76, fully gird has been launched, track has been linked. And this side lift span weight is 540 metric tons. It is assembled at A2, that is Rameshwaram end. That has to be moved to that position. This 448 meters. We have to move it to keep it in a span position P7778. This will we are now preparative works are going on. Once this is complete, we'll start moving this bridge to that location, and parallelly other spans will be launched one by one, closely following this. So full will be completed, it will be commissioned for public. आपको बता दें कि मंडपम से रामेश्वरम तक को ये ब्रिज जोड़ता है, लेकिन जब पुराना ब्रिज बंद किया गया तो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि उन्हें रोड के माध्यम से आना पड़ता था रामेश्वरम, क्योंकि रामेश्वरम आने वालों की संख्या देश भर से बहुत ज्यादा होती है। तीर्थ स्थल है, बाबा की नगरी है। अगर बात करें तो जो 2.08 किलोमीटर्स है, उसमें अगर बात करें तो काफी ज्यादा काम जो है पूरा हो गया। अगर बात करें सर, डेप्थ कितना ज्यादा है और कितना वक्त लगेगा सर ट्रेन, हाउ मच टाइम इट विल टेक बाय ट्रेन टू कम टू रामेश्वरम बाय मंडपम? Now it takes more than 45 minutes to old bridge. Now it will be hardly 20 minutes you can reach here from Mandapam to Rameshwaram. First, the train was running very slowly, and it was only one line. One line. Now also one line only. Now also single line only. But since speed will be increased by, it can run at maximum 80 kilometers per hour. So number of trains can run more time. They can clear the section within a short time. So the trains can be increased. More pilgrims will benefited. So vertical lift scam. How it will work when the ship will come? How it will be open? Once the ships want to move, they will take permission from railways. Once railway gives permission, the lift span will be lifted through electrical motor and gears will be there. It will start lifting and it will be connected to wire rope. All these things will be operated by mechanics. Then it will lift the span, and once lifting is completed, ships will start move. Once that job is over, that will be confirmed by Tamil Nadu Maritime Board. They will also be here. That ship movement is completed, then you lower the bridge, and that will automatically gets connected with the track by the rail joint, and normal train service will start. तो सीनियर डीजीएम है और इन्हीं की निगरानी में ये पूरा काम जो है वो चल रहा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से पंबन ब्रिज की ये तस्वीर है। समुंदर के बीच में नया ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, और देखिए किस तरह से जो लोग रामेश्वरम आना चाहते हैं अब उनके लिए आसान होगा, और ये बहुत ही ज्यादा रोमांच भरा सफर होगा, क्योंकि नदियों पे ब्रिज तो आपने देखा होगा, लेकिन समुंदर के बीच से देश का ये पहला है। और पहले भी बहुत लोग आए होंगे पुराने ब्रिज से, लेकिन जब नया बनेगा तो उसकी रफ्तार भी काफी तेज होगी। ट्रेन जो है
करीब 20 मिनट के अंदर मंडपम से आपको रामेश्वरम पहुंचाएगी। पहले 45 मिनट समुद्र के बीच से ट्रेन को होकर गुजरना पड़ता था। ट्रेन काफी धीमी रफ्तार में चलती थी, लेकिन पुराना ब्रिज था, 100 साल से ऊपर हो चुका था, सुरक्षित नहीं था, इसलिए इसे बंद कराया गया है। और 2022 दिसंबर में जब इसे बंद कराया गया, कोरोना की वजह से थोड़े काम में डिले भी हुआ, लेकिन अब देखिए कि ये काम जो है वो चंद महीनों में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ट्रेन इस पर दौड़ेगी और रामेश्वरम जो लोग आना चाहते हैं देश के किसी भी कोने से, डायरेक्ट ट्रेन होगी। अब ट्रेन से आप समुद्र के बीच से होते हुए गुजरेंगे तो सफर भी बहुत ज्यादा रोमांच भरा होगा और बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं पंबन ब्रिज सी के बीच में हम मौजूद हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से पुराना और जो नया ब्रिज है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और नया ब्रिज जो है अब केवल कुछ महीनों का इंतजार है, जिसके बाद इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और लोगों के लिए रामेश्वरम जो तीर्थ स्थल है आना बेहद आसान हो जाएगा। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ भावना किशोर, टाइम्स रन अप भारत के लिए।